Good morning students, hope you all are doing well. Today we have to continue our chapter ICT skills, session 8 email application. आप सब email से familiar होंगे. How we create an email, how we send an email. What do you mean by email? As your name suggests, electronic mail. E-mail, electronic mail. Email represents the mode of communication in which a user can send electronic message to other user through internet. इंटरनेट की हेल्प से जब हम मैसेज सेंड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज सेंड करते हैं, when we send electronic message with the help of internet. Email provide a convenient way to exchange digital messages, electronic messages across the internet. और ईमेल की हेल्प से हम एक ही टाइम में एक मैसेज को बहुत सारे यूजर्स को सेंड कर सकते हैं. इट इज़ अ मोड दैट अलाउ ग्रुप एज वेल एज इंडिविजुअल टू शेयर आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन. आइडियाज़ शेयर करने के लिए, इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, जो इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस हैं उनको सेंड करने के लिए ईमेल का यूज़ किया जाता है. अब हमें ईमेल सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? ईमेल सर्विस के लिए थ्री साइट्स हैं: gmail.com, yahoo.com एंड outlook.com. ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स जो हमें ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फर्स्ट इज gmail.com. gmail.com के थ्रू हम अपना मेलिंग अकाउंट बना सकते हैं और इस सर्विस को यूज़ कर सकते हैं. yahoo.com. yahoo.com के थ्रू भी हम अपना ईमेल क्रिएट कर सकते हैं और इस सर्विस को यूज़ कर सकते हैं. एंड द लास्ट इज outlook.com. These three are the email service provider which provide us the service to create an email account and exchange our ideas or information or electronic messages to other users through internet. The first step in an email application is how to create an email account. जब तक जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनके पोर्टल पे हम अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक हम उस सर्विस को अवेल नहीं कर सकते. तो हाउ डू वी क्रिएट एन ईमेल अकाउंट? जो भी हम सर्विस प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं, जीमेल यूज़ कर रहे हैं, याहू यूज़ कर रहे हैं, आउटलुक यूज़ कर रहे हैं, हमें वो साइट ओपन करनी होती है. पहले वी हैव टू ओपन द साइट. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने जीमेल यूज़ किया है तो वी हैव टू ओपन द साइट ऑफ जीमेल. Open your web browser, Internet Explorer, Google Chrome,
and then type the address of the email service provider over here. This is the address bar. You all are able to see the cursor is blinking over here, and this is known as address bar. यहाँ पे हम टाइप करेंगे gmail.com and then enter, and then press enter. When we open the Gmail service provider, we have to click over here to create an account. Click over here to create an account. When you use mobile phone for creating an account, this type of window is open, and you have to enter the first name and the last name. Here we enter the first name and the last name, and then click on the next button. Click on the next button. After the first and the last name, you have to enter your birth, day and gender. Here you enter your birthday, and here you fill the gender, and then click on the next button. When you use your laptop for creating an account, here you have, when you click on the create an account button, this type of window is open. Here you enter the first name, last name. Choose your username. Username is the name which define or which identify you in a service provider, जिसके थ्रू आप उस नेम के थ्रू आइडेंटिफाई होंगे. अगर हमने जीमेल को सर्विस प्रोवाइडर की तरह चूज़ किया है, तो हम यहाँ पे अपना वो नाम डालेंगे जो हम एड्रेस क्रिएट करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, योर नेम इज सिद्धि and you want to create a Gmail account, so choose your name as siddhi@gmail.com. @gmail.com is by default. You have to choose the name as Siddhi or whatever you want your username, and then create a password. पासवर्ड के थ्रू हम इसमें सिक्योरिटी ऐड कर सकते हैं, सो दैट वी आर एबल टू सी आवर अकाउंट. देन confirm your password and click on the next button. When you click on the next button, some terms and conditions provided by the service provider are given. You have to accept the condition. When you accept the condition, your email account is created. अब नेक्स्ट स्टेप, जब हमने ईमेल अकाउंट बना लिया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, कैसे हम मैसेज को ट्रांसफ़र करेंगे, कैसे हम मैसेज डिज़ाइन करेंगे और किस तरह से हम मैसेज डिलीवर करेंगे. If you want to create an email, your email contain first header and the second is body. दो चीज़ें होती हैं ईमेल में, हेडर और बॉडी. हेडर में हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि हम किसको भेजना चाहते हैं, क्या सब्जेक्ट है हमारे मेल का, और बॉडी में जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं वो बॉडी में आता है. There is one header in each email. Header contain 2
हम किसको ये मैसेज सेंड करना चाहते हैं, द ईमेल एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट। 2 में हम डिफाइन करते हैं द ईमेल एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट। फ्रॉम, कौन भेज रहा है इस मैसेज को, सब्जेक्ट ऑफ द मैसेज। सब्जेक्ट हम इसलिए डिफाइन करते हैं, ये हम कर भी सकते हैं, नहीं भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम सब्जेक्ट डिफाइन करते हैं तो जिसके पास हम मैसेज भेजें उसे पहले ही पर्टिकुलर पता चल जाता है कि ये मैसेज किसके रिगार्डिंग है। जैसे हम एप्लीकेशंस में सब्जेक्ट लिखते हैं, इसी तरह से हम ईमेल्स में भी सब्जेक्ट डिफाइन करते हैं। एंड डेट, ऑन विच डेट द मैसेज इज सेंट। The header contain to, from, subject, date. Here is the format of the email. Date, from, to, subject. We have to mention here the date on which we design the email, from, our address, to, the address of the recipient, and subject of the message. And this is the body where you write your message which you want to give. हेडर में 2 चीज़ें और ऐड होती हैं बेटा, CC एंड BCC। CC टर्म कार्बन कॉपी एंड BCC ब्लैंक कार्बन कॉपी। इसमें वो एड्रेसेस होते हैं, 2 में तो हमने एक एड्रेस डाल दिया जिसको हम इसे देना चाहते हैं, लेकिन हम और जगह भी इसे सेंड करना चाहते हैं, तो वो हम CC और BCC में वो एड्रेस मेंशन करते हैं जो और एड्रेस हैं। जैसे एक ही को हम सेंड नहीं करना चाहते, हम बहुत सारे को एक ही मैसेज सेंड करना चाहते हैं, तो वो हम CC और BCC में नोट डाउन करते हैं। वो ईमेल एड्रेसेस जो हम इस मैसेज को सेंड करना चाहते हैं जहाँ पर, वो हम CC और BCC में मेंशन करते हैं। 2 में हम वो मेन एड्रेस मेंशन करते हैं जिसके लिए हमने इसे डिज़ाइन किया है, लेकिन ऐसा भी होता है कई बार एक जिसके लिए मैंने डिज़ाइन किया उसके साथ साथ हम औरों को भी ये मैसेज सेंड करना चाहते हैं, तो वो हम CC और BCC में डालते हैं। CC मीन्स कार्बन कॉपी एंड BCC मीन्स ब्लैंक कार्बन कॉपी। जब हम मैसेज सेंड करते हैं तो हमने जितने बंदों को ये मैसेज सेंड किया है सबको शो होता है कि हमने ये मैसेज किस किस को सेंड किया। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि सिर्फ वो ही उस बंदे को शो हो कि ये मैसेज, और उसे पता ना चले हमने और किसको ये मैसेज सेंड किया, तो वो मैसेज हम ब्लैंक कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी भी कहते हैं। तो BCC में हम वो मैसेज, वो ईमेल एड्रेस लिखते हैं जो ईमेल एड्रेस पे हम ये डिफाइन नहीं करना चाहते कि ये मैसेज और किसी को भी सेंड हुआ है। जो मैसेजेस, जो ईमेल एड्रेसेस BCC में डिफाइन होते हैं वो सिर्फ सिंगल कॉपी होते हैं, उनको नहीं पता चलेगा कि हमने और किसको ये मैसेज सेंड किया। 2 और CC में जितने भी एड्रेसेस हैं वो सबको पता चलेंगे। लाइक मैंने आपकी पूरी क्लास को एक मैसेज सेंड किया तो सब बच्चों को पता चलेगा कि हाँ ये मैसेज मैम ने पूरी क्लास को सेंड किया। लेकिन अगर मैंने किसी का एड्रेस BCC में डाला है तो वो एड्रेस सबकी लिस्ट में शो नहीं होगा। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CC एंड BCC? आई थिंक इट इज क्लियर नाउ, and this is the process how we send the message. Now you are able to create an email account and send the message. Thank you students. Take care.